میرے دوستوں، عزیزوں، جیسس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل عالمی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 585 اور شو کا ٹاپک ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، یا جو اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اور یہ زبور 128 سے اس کی 6 آیات ہیں، اور 6 کی 6 آیات پڑھوں گا، اور یوں لکھا ہے۔ اور اس کا ٹاپک جو ہے زبور کا خداوند کی فرمان برداری کا اجر، خداوند کی فرمان برداری کا اجر، معلومات یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، تیری اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آمین۔ زبور 127 اور زبور 128 آلموسٹ ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ زبور آج میں نے خاص طور پر یہ جو حوالہ ملا ہے مجھے، یا حوالہ میں نے لیا ہے، یہ آج میرے پوتے الائجہ جان گل کی سالگرہ ہے، اور اس نے 7ویں سالگرہ میں داخل ہو گیا ہے، اور آج میرے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور یہی اس حوالے میں جو لکھا ہے کہ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے۔ خداوند اپنے بچوں کے بچے دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اور یہ بہت بڑی جو ہے، یہ میں ٹاپک چینج کرتا ہوں، اور جو شو کا ٹاپک میں رکھتا ہوں، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اور یہ مجھے ٹاپک چینج کرنا پڑا اس لیے کہ آج یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر، بلکہ ہمارے سارے خاندان کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر، اور اس لیے کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ میں کئی بار ایک دو جو پوسٹیں ایسی پڑھی ہیں کہ وہ باپ بہت خوش قسمت ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ اور میرا بیٹا جب 1981 میں حیدرآباد لیاقت میڈیکل ہاسپٹل میں پیدا ہوا تو میں گھر سے باہر تھا، چونکہ ہاسٹل کے اندر رہتے تھے۔ جیسے میں گھر آیا تو داخل ہوا ہی ہاسٹل میں، تو سب ظاہر نرسز کے اندر رہتا تھا، تو سب نے مجھے بتایا کہ بھائی جان باجی ہاسپٹل پہنچ چکی ہے، جلدی سے جائیں۔ اور میں گیا تو خدا کا فضل ہو گیا، اور نرسوں نے میری جھولی میں میرا بیٹا کاشف جمال گل، جو اس وقت اس کا نام میں نے رکھا، اور وہ میری جھولی میں ڈالا۔ اور جب الائجہ گل 2014 میں پیدا ہوا تو سینٹ پیٹر بہت خوبصورت ہاسپٹل یہاں پر آلبنی میں، اور میں اور میری بیوی دادی دادا ہاسپٹل میں بچوں نے بلایا، اور جیسے ہی الائجہ گل
दुनिया में आया तो मुझे और मेरी बीवी के गोद में डाल दिया गया, और तस्वीरें फेसबुक पर हैं। और इतनी जो बरकत है कि बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, और खुदा ने मुझे अपने बच्चों के बच्चे दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी बरकत, बहुत बड़ी बरकत। और यही जो मेरा आज का हवाला है, ज़बूर 128। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सहून में से तुझको बरकत दे, और तू उम्र भर यरूशलेम की देखे, भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। तो खुदा आप सबको ये बरकत देता है। आप बाप भी बनते हैं, दादा भी बनते हैं, बल्कि आगे खुदा और थोड़ी उम्र की दराजी दे दे तो फिर अपने बच्चों के बच्चे भी देखते हैं। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और एक बात और शेयर करूंगा कि इंसान जब काफ़ी उम्र पा लेता है और उसकी सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें जो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, और आखिरी उम्र में जब वो अपने बच्चों के बच्चे देखना शुरू कर देता है, खुदा उसको ये बरकत देता है, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों से खुश हो जाता है, और उसकी जो हर ख्वाहिश पूरी, फिर वो खुदा के सामने दुआ करता है कि खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे हर नेमत से नवाजा, हर नेमत देखने का मौका दिया। अब अगर मेरा वक्त आए तो मैं खुशी के लिए, खुशी से तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ। और ये भी एक बरकत की बात है कि अपनी ज़िंदगी में ही गुनाहों की माफ़ी और गलतियों गुनाहों की माफ़ी मांगने का भी मौका मिल जाता है। और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने बच्चों के बच्चे दिखाए। एलाइजा गिल, हैप्पी बर्थडे आपको, सबको आज की खुशी मुबारक हो। थोड़ी देर में आपके साथ मुलाकात होगी, आपका केक काटा जाएगा और दादी दादा भी शामिल होंगे। तो सबसे पहली पोस्ट है शहजाद गिल की, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, खुदा हाजिर है, नाजर भी है। बिल्कुल, खुदा हाजिर और नाजर है, हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है। खुदा जाहिर है, मंजर भी वही हाल से वाकिफ है, और खुदा ज़ाहिरी तौर पर हर वक्त मौजूद रहता है, हर चीज़ को, हमारे हाल को, मुस्तकबिल को देखता है, माजी को देखता है। वही सीनों के अंदर भी कभी मांग कर देखो, वो हमारे सीनों में मौजूद है। अगर हम उससे मांग कर देखे, सच्चे और अच्छे दिल से मांगे, तो वो हमें बरकत और फजलों से बरकत देता है। क्योंकि वही जो कुछ भी आज मेरा टॉपिक है, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे तो वो ये बरकत भी देता है। तुम्हारी आंखों के आंसू यूं ही डलते नहीं ढलने नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी आस की गागर पुराने जमाने में होती थी, पीतल की, जिसमें घड़े की तरह जिसमें पानी भरा जाता था, उसको गागर कहते थे। कि तुम्हारी आस की गागर कभी गिरने नहीं देगा। वो गागर जो पानी से भरती है, वो आस अपनी बरकत और फजलों से भर देगा, तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। हवा कितनी मुखालिफ हो, बिल्कुल ठीक बात कर, जिसके साथ खुदा शामिल हाल हो, भले वो हवा, आंधी, तूफान चले, तुम्हें मुड़ने नहीं देनेगा। जो जिस मंजिल की तरफ आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, अगर कितना भी तूफान हो, आंधियां हो, हवाएं आए, वो आपको मुड़ने नहीं देगा, वो आपको मंजिल की तरफ चलने देगा। कभी मायूस मत होना, और मायूसी गुनाह है। उम्मीद रखें तो खुदा जरूर जो है वो आपको बरकत देगा, और अपने बच्चों के बच्चे देखने की जो है वो बरकत और फजल देगा। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, आज मास्क पहने बगैर जहाज, ट्रेन और कई जगहों पर दाखिला मना है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारी चीज़ों जगहों पर
बल्कि यही सबसे खूबसूरत और बेहतरी हमारे लिए है कि हम मुतात रहें, एहतियाती तदबीर करें, तो फिर जाकर हम इस वबा से जो है वो खलासी। और यही हमारे लिए बेहतर है कि जो हुकूमत कहती, जो लोग कहते हैं मास्क पहने, जो एहतियाती तदबीर हैं वो करें, तो खुदा हमें और इसका इलाज यही है कि एहतियाती तदबीर करें। लेकिन जो आखिर में खूबसूरत बात लिखी है, तो सोचें, हम सोचें कि तो सोचो कि ईमान के बगैर जन्नत में कैसे दाखिल हो गए। हम यहाँ पर तो मास्क पहन के जहाज़ों में, ट्रेनों में, बसों में, बाज़ारों में घूम सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान पक्का और मजबूत नहीं होगा, उसमें तो लापरवाही नहीं चलेगी। तो फिर हमारे लिए जो कि हम जन्नत की बातें करते रहते हैं, हूरों की बातें करते रहते हैं, तो क्या अगर हमारा ईमान मजबूत नहीं है, तो फिर हम जन्नत में कैसे जाएंगे और हमें हूरें कैसे मिलेगी? वो तो इसी सूरत में होगा। हमारा ईमान तो खैर हूरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंसानों के साथ ऐसा ताल्लुक है। हमारा तो इतना ही ताल्लुक है, खुदा हमारी गलतियों गुनाहों को माफ़ करे और सहून में से हमें बरकत दे और हमें फरदौस में जगह दे, जन्नत में जगह दे। यही हमारे लिए सबसे जो खुशखबरी है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, मजदूरी सारी ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो। कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। ये भी बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है कि हमारे कदरें कुछ ऐसी हैं कि कुछ रिश्ते परेशानी, ज़रूरत से ज़्यादा हेडेक, ज़रूरत से ज़्यादा तंग करने, और वो जो लिखा है बिल्कुल कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि खून चूसने के लिए भी कि इतनी परेशानी देते हैं कि इंसान का अपने आप को बीमार फील करने लगता है। तो इसलिए ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए, बल्कि हमने प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक से हमने वाकई हम खूनी रिश्तों की कदर भी भूल गए हैं। तो हमें अपने खून का, अपने रिश्ते का, जो भी है, बहन है, माँ है, चाची है, ताई है, जो भी है खूनी रिश्ते हैं, उनसे हमें पूरी तरह इंसाफ के साथ उसके साथ मिलना जुलना चाहिए। उसके बाद खुदा का कलाम की एक पोस्ट है, उसमें लिखा है, पाकरू से भरा शख्स कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। बिल्कुल सच्ची बात है कि पाकरू से भरा हुआ, जिसके साथ खुदा की पाकरू है, वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। जब लोग आप पर ध्यान ना दें तो फिक्र ना करें, बल्कि हर रोज पाक रूह से भरते रहें। और अगर आप पूरे ईमान और भरोसे से खुदा से पाक रूह की ताकत मांगे और खुदा यीशु मसीह की, तो रोज़ की बातें हर जगह से आप सुनते हैं कि जब रसूल बंद हो चुके थे, खुदा ने, यीशु मसीह ने, कि मैं आपके पाप के पास जाऊंगा और आपको एक मददगार भेजूंगा। वो मददगार क्या था? रूह पाक था। पुराने अहदनामे में जितने भी नबियों, जितनी भी पेशन हुई हैं, खुदा पाक तो उनको रूह की ताकत देता था और वो इल्हाम करते थे। खुदा उनके जुबान में वो होकर बोलता था और वो रूह पाक की ताकत। और हमें भी, लेकिन सच्ची ताकत दिखावे की ताकत नहीं, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो रूह के हम मौजे करते हैं, वो ताकत नहीं, जो हकीकत में खुदा यीशु मसीह के साथ और उसके रसूलों के साथ रूह पाक की ताकत थी, वो ताकत मिलेगी। आज की सच्ची बात, बहुत सच्ची बात मैं कहूँगा कि बाइबल की मसीहियत कम और हर एक की अपनी अपनी मसीहियत ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल से बाइबल की मसीहियत क्या है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक। बाइबल की खुदा मोहब्बत है।
اور خدا حلیمیت کی تعلیم دیتا ہے. لیکن ہم نے جتنے چرچز بنائے ہوئے، جتنی کلیسیاں بنتی جا رہی ہیں، ان کی اپنی آئیڈیالوجی، اپنی مسیحیت ہے. وہ بائبل کی مسیحیت کو نہیں، یا جو نئے ادنا میں خدا یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں ان کو نہیں، وہ اپنی مسیحیت جتنے بھی لوگ انہوں نے گھیرے ہوتے ہیں ان کو اپنے خیال میں شامل کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانو، بائبل کو بھی چھوڑو دوسرے لوگوں. اور یہ ٹھیک نہیں. جو اصل مسیحیت ہے، جو خدا یسوع مسیح اور خدا باپ کی تعلیم ہے، ہمیں جو بائبل میں واقعی اچھی اور سچی تعلیم ہے، ہمیں وہ تعلیم دیجیے. کیونکہ ہمارے لوگ اب اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، اور زیادہ تر جو ہر مجمع میں، ہر چرچز میں اگر 100 تعداد ہے، 100 تو کم ہی ہوگی، اگر ہے بھی تو اس میں 75% جو ہے، 75% جو ہے وہ میری مائیں، میری بہنیں، عورتیں ہوتی ہیں. اور عورت بہت موم دل ہوتی ہے، وہ کہہ دیتی ہیں پادری بیچارہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، اسی کی مان لو، یہ ٹھیک کہتا ہو. کیونکہ ان کو بائبل مقدس کا اتنا علم نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں کو بائبل مقدس پڑھنی آتی ہے وہ پڑھے اور جانے کہ حقیقی مسیحیت کیا ہے، حقیقی مسیحی کی تعلیم کیا ہے. اس کے بعد سیمی رمنی کتا ہے، بہت خوبصورت لکھا ہے. کیا ملا ہمیں تقسیم اور بٹوارے سے؟ یہ پاکستان اور انڈیا کی جو پارٹیشن، جو علیحدگی ہوئی 1947 کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے قطع لکھا ہے. کیا ملا ہمیں تقسیم اور بٹوارے سے؟ دھرتی رنگی گئی خون کے دھارے سے. بالکل بہت خون خرابہ ہوا تھا جب ملک کا اعلان ہو گیا کہ ملک 2 حصے ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا. تو پھر جو اس وقت کے ہندو تھے، سکھ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے سکھوں اور ہندوؤں کا خوب دل بھر کے خون خرابہ کیا. تو یہی سہمی صاحب کہ دھرتی جو وہ خون سے رنگی گئی، خون ہی خون تھا، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے خون کی قربانیاں دی، اور اس خون کی قربانی سے ہمیں کیا ملا؟ ایک دوسرے کو تانے مینے، ایک دوسرے سے 47 سے لے کر آج تک جھوٹ اور منافقت کی سیاست کرتے رہے. تو اس بٹوارے کا ہمیں کیا فائدہ ملا؟ پاکستان پاک سرزمین کا نام دیتے ہیں، لیکن پاک باتیں تو وہاں پر ہوتی نہیں، وہاں پر تو جھوٹ اور منافقت کی باتیں ہوتی ہیں. دوسرا شعر ہے، انسانیت مر گئی مذہب کے سہارے سے. کیونکہ پاکستان جو علیحدہ ہوا تھا، جو علیحدگی کی تاریخیں چلی تھی، وہ تھی مذہب کے نام سے، اسلام کے نام سے. اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے نام سے یہ پاکستان ملا تھا. تو کیا ہوا، کیا ملا ہم نے؟ کہ انسانیت مر گئی مذہب کے نام سے، تو ملک لے لیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بنا دیا. لیکن جمہوریت اس میں کہا، نہ تو اسلامی جمہوریت ہے، نہ انسانیت کی جمہوریت ہے، نہ غریبوں کی جمہوریت ہے. اگر جمہوریت ہے تو لوٹ کسوٹ کی جمہوریت ہے، جو جس کا ہاتھ چلتا ہے وہ چلانے کی جمہوریت ہے. اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو پھر جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جمہوریت اپنے لیے جمہوریت ہے، لوگوں کے لیے تو صرف بدنام کرنے والی بات ہے. سنبھلی نہ پھر بھی زندگی اس کسارے سے. کتنا نقصان خروف رابہ ہونے کے بعد بھی ہمارے پاکستانیوں کی زندگی 47 سے لے کر آج تک نہیں سنبھلی. اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں، کتنے ملک ہیں، کبھی کئی بار کچھ نہ کچھ، جی ہماری تعداد، مسلمانوں کی تعداد، وہ کرسچنوں سے، مسیحیوں سے، ساری دنیا سے زیادہ. چلو بھائی مان لیا، لیکن اگر سارے مسلمان جو ملک ہیں سکون سے رہ رہے ہیں،
جیسے مڈل ایسٹ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بھی کتنے ملک خوبصورت ہیں جو، لیکن یہ سارا مسئلہ جو ہے چونکہ مذہب کے نام سے لیا گیا، اور مذہب کی جو ہے وہ ابھی بھی جو انڈیا بھی اور پاکستان بھی مذہب کے نام سے ہی لڑتا جا رہا ہے، اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری ایک بات، جو جتنے پاکستان میں مسلمان آئے اس سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی ہندوستان میں، نہ وہ وہاں پر سکون سے ہیں اور نہ پاکستان میں سکون سے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہو علیحدگی لینے کا؟ کیا فائدہ؟ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی دولت کٹھی کرنے کے لیے، یا اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے، یا اپنے بچوں کو زندگیاں بنا کے ملک کا پیسہ لوٹ کر ان کو باہر سیٹ کرنے، تو پھر آپ پاکستانی تو نہیں۔ صرف پاکستان تو آپ کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے کہ دولت لوٹو اور باہر بیچتے جاؤ، اور باہر اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور جو جب مر جاؤ تو پھر پاکستان میں کوشش ہوتی کہ ہمیں دفنایا پاکستان میں جائے۔ تو یہ کیسا ملک ہے؟ بہت اچھا سیمی صاحب آپ نے جو قطع لکھا ہے، ایک شعر ہے، داغ داغ مت کہو، داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہیں۔ اگر میں اس میں کہوں کہ ہم ہر ایک اس ملک میں داغدار ہیں، کہتے تو ہم نے صادق اور امین، لیکن ہم سب داغدار، ہم جس کا بھی، چاہے وہ غریب سے غریب ہو، چاہے مسیح ہو، چاہے مسلمان ہو، یہی دونوں زیادہ کوششیں کرتے ہیں، یہ نہیں بخشتے۔ جہاں سے بھی ان کو جھوٹ سے، منافقت سے پیسے ملتے ہیں، قتل و غارت کر کے، دہشت گردی کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کر کے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان اکثریت میں ہیں، ان کا ملک ہے، اور وہی اپنے غریب عوام کو اور ملک کو لوٹ لاٹ کر اپنے بچوں کے لیے دولتیں باہر جمع کر، تو پھر وہ کیسی سیاست ہے؟ پھر کیسے ملک کے لیے، ملک سے محبت کرتے ہیں؟ کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا لاڑکانے کی، کہ ان کا فیس بک پہ دکھایا تھا کہ ان کا جو جہاں آپریشن تھیٹر، اور کیا بات ہے کہ یہ ہے جہاں پر بذات خود پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب رہتے ہیں، اور وہاں کا یہ حال ہے، وہاں کتوں کی بہتات ہے، وہاں پر بیماریوں کی بہتات ہے، اور کہتے ہیں جی ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سندھ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے لوگوں پارٹیوں کا حال۔ بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ کون؟ وہ بے داغ ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے، جو ہمیں اپنے بچوں کے بچے دیکھنے کی ہمت اور طاقت اور برکت دیتا ہے، وہ بے داغ ہے۔ اور آج کا یہی میرا ٹاپک ہے کہ بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اور شروع میں نے بتایا تھا کہ آج میرے پوتے کی علیجہ جان گیل کی سالگرہ ہے، تو میں نے زبور 128 پڑھا، جس کی آخری ہے کہ تو سعادت مند ہوگا، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ اور بہت خوبصورت اس کے بعد ہے عامر پطرس عامر، ایک خاص دعا انہوں نے لکھی ہے، اور یہ بھی غریب ایمان ہمارے مسیحوں کے واسطے انہوں نے لکھا ہے۔ کرائے پر رہنے والے لوگوں کی پریشانی دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے، وہ گھر کے اخراجات پورے کریں یا کرائے دیں، یہ حالات تو ایسے لوگوں کے لیے اور بھی دکھ بھرے ہیں۔ اور اے یسوع جی، اے یسوع مسیح، تو مسیحی بہن بھائیوں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں سب کو اپنے غائب کے خزانوں سے اپنا گھر لینے کے ثبات فرما۔ آمین آمین۔ خدا آپ کی دعا سنے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، تو خدا ہماری اس دعا کو سنے کہ ہم، لیکن جب تک ہم خدا کے ساتھ سچے اور اچھے دل سے وہ نہیں شامل ہوتے، وہ ہمیں وہ برکت نہیں ملتی، کیونکہ برکت وہی ملتی ہے جو خدا کی طرف سے، اگر ہم سچے اور اچھے دل سے، کیونکہ دیکھنا بے داغ وہی ہے، خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور خدا بے داغ ہے۔ شعر پورا پڑھتا ہوں، داغ داغ ہے مت کہو، سب داغدار ہیں، سب داغدار انسان، سب داغدار ہے۔ بے داغ وہی ہے جو پروردگار، جو خدا باپ اور خدا بیٹا اور روح پاک،
वो बेदाग हस्तियां हैं और हमने उन पर ईमान रखे तो ज़रूर। लेकिन चूँकि हमारे कोई अच्छे गाइड करने वाले, ना साधसा, ना पादरी साहबान, ना बिशप साहबान, तो इसलिए बरकतें तो वो हासिल कर रहे हैं और जिनके वसीले से कर रहे हैं वो उनको बेचारे किरायों में धक्के खाते फिरते। नदीम अजमल अदीम का बहुत खूबसूरत शेर है, मैंने जब देखा इस कदर मसरूफ है दुनिया, मसरूफ है दुनिया, तो वह पहले ही बड़ी मसरूफ थी और हर वक्त एक बहाना होता था, यार वक्त ही नहीं मिलता। और आज कोरोना ने ऐसा वक्त दिया कि जो थोड़ा बहुत कभी कुछ ज़रूरत वक्त मिलते थे वो भी ख़त्म हो गया। और यही इसी वाले से एक शेर है कि मैंने जब देखा ज़माना इस कदर मसरूफ़ है, अपना खुद लाशा उठाया, अपनी लाश खुद उठाई और खुद ही मातम कर लिया। और ये वक्त आ गया है। बहुत अच्छा नदीम साहब आपने लिखा है कि ऐसा वक्त आ गया और कोरोना ने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया, क्योंकि किसी के पास बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं। खुदा ने ऐसा बंद किया, खुदा ने एक ऐसी वबा भेजी कि हम अपने बहन भाइयों को भी नहीं दफना सकते इस वजह से कि कोरोना के डर से। लेकिन हम कोरोना से डर रहे हैं, लेकिन हम खुदा से नहीं डरते। जब तक हम खुदा से नहीं डरेंगे ये वबा भी मेरे ख्याल जल्दी नहीं जाएगी, क्योंकि हर मर्ज का, हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। जो भी बड़े बड़े मर्ज, टीबी आया, कैंसर है, सबके इलाज मुमकिन है। लेकिन कोरोना वायरस का इलाज 6 महीने तक में अभी तक कुछ इलाज नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छा लिखा सर, अपना खुद लाशा उठाया, खुद ही मातम कर लिया और सब कुछ खुद ही कर दिया अपना। और ये कोरोना वायरस ने ये सब कुछ साबित कर दिया है, आपके शेर को सच साबित कर दिया है। इजाज भट्टी तारक अजीज के हवाले से, जिस दिन हमारा कूच होगा, तारक अजीज शायद थे बड़े खूबसूरत, जिस दिन हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होगी। और बिल्कुल हर इंसान यही सोचता है कि जब मैं खुदा के पास जाऊं, जब मेरा मौत का वक्त है, रुखसत का वक्त है, तो मुझे भी लोग अच्छे तरीके से रुखसत करें, अच्छे तरीके से हार और फूट डालें। लेकिन जो तारक अजीज ने कहा कि पता नहीं उस दिन मुझे भी हार डाले जाएंगे या उस दिन दुकान नहीं बंद होगी। उसके बाद परवीन शाकर की बहुत अच्छी गज़ल, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, फिक्रमंदी तो है, रंज तो है, परेशानी तो है, लेकिन इतनी भी नहीं, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बिल्कुल मानने वाली बात है कि आंख तो तब ही लाल होती कि जब परेशानी, जब आंसू निकलते हैं, आंसुओं की बरसात होती। लेकिन फिर भी जब कोई देख ले, नहीं कोई बात नहीं, कोई ऐसे पर ये तो वैसे ही आंसू आ गए, या खुशी के आंसू, या पानी आ गए इस वजह से, तो हम मानते तो नहीं। और ठीक बात है, क्योंकि परेशानियां बताने से परेशानियां बढ़ती हैं। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सारे, बिल्कुल हर कोई इतनी मुश्किल में है, अपनी वबाएं आ चुकी हैं मुल्क में हर जगह पे, कुल आलम पर। लेकिन आज भी हम अपने मुल्क में जो है, हम अपने आप को बचाने के चक्कर में हैं। और ये भी देखें, गरीबों को कम और एमएनए को और मौलवी हजरात को, ये सारे मजहबी रहनुमाओं को भी ये कोरोना ने पकड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम सबक नहीं हासिल कर रहे। बस आपके अपने वास्ते ही फिक्रमंद है, अपने वास्ते फिक्रमंद है कि नैब से बचें। जो कुछ हमने लूटा हुआ है वो उमरान को वो जलील कर रहे हैं, वो जलील। लेकिन उमरान ने भी उनकी जलालत की इंतहा की हुई है कि मैं तो आज भी उसका बयान था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम अवाम भी सच का साथ दें तो फिर ये जो झूठे सियासतदान जो लोगों को लूटने और सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, नाम अवाम का लेते हैं, लेकिन फिक्र अपनी होती है अपने आप को बचाने की। वो बहुत सारे थे, अपने बच्चे और जायदाद ही उन्होंने तो अपने आप को बचा लिया। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है।
बिल्कुल यहाँ पर किसी को किसी का कोई ख्याल नहीं। आपको खुद ही, जैसे मैंने ये शेर पढ़ा है, तो अपना खुद ही लाशा उठाया और खुद ही आप, वक्त आ गया क्या, तो खुद ही अपनी मैयत या लाश उठाने पड़ेगी। क्योंकि अगर कोरोना वायरस से हम जाते हैं, अगर आम हालात में बीमारी से भी मरे, तो फिर भी हम एक दूसरे के नज़दीक जाने से डरते हैं। तो इसलिए किसी को किसी की फिक्र नहीं, हर एक को अपनी फिक्र है कि मैं कोरोना वायरस में या मैं किसी बीमारी में ना पड़ जाऊं। परों को काट दिया उड़ान से पहले, परों को, तो क्या क्या परिंदा उड़ेगा, या क्या आपके पारी काट दिए, आपको हर जगह से मुश्किलें ही मुश्किलें डाल दिए। ये खौफे हिजर है, शौके वसाल थोड़ी है। बहुत अच्छा लिखा है। मजा तो तब है, मजा तो तब है कि हार के भी हमसे, और यही है कि हम अगर हारते हैं, तो फिर अगर हम पूरी ताकत करें और हम इरादा करें कि इस बार हार गया, एक बार दो बार, लेकिन तीसरी बार हम पूरी जोर से, कि तीसरी बार हम जीतेंगे। और यही जो मंजिलें हासिल करने का यही तरीका है। मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो। हमने हमेशा जीत ही जाना कमाल तो नहीं है, बिल्कुल हमेशा जीत ही जाना कमाल तो थोड़ी है। जाहिर है जीत है और हार भी है, खुशी है, गमी भी है, दिन है और रात भी है। तो अगर दो पहलवान लड़ते हैं तो एक को तो हारना पड़ता ही। दो भागेंगे या 10 भागेंगे तो जीतेंगे तो एक दो ही, लेकिन दूसरे दिल ना तोड़े। फिर अगली बार के लिए जब भी मौका है फिर कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, हिम्मत करें, एक्सरसाइज करें, साथ साथ खुदा को भी याद करें, क्योंकि उसके हाथ में सारी बरकतें और फजल है। क्रिस्टोफर क्रिस्टी की हर वक्त बहुत अच्छी पोस्टें, ये बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखी। तारीख गवाह है कि जो कौमें अपने तारीखी असासाजात की हिफाजत नहीं कर सकती, रहाई रहाई जो उनकी तंजीम है या तहरीक है, रहाई तहरीक यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल यूसीएच के मतलब है। यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल के यूसीएच की खरीदो फरोख्त करने वालों की शदीद मजम्मत करते हैं, और मैं भी शदीद मजम्मत करता हूँ कि ये लालची टोले जो हैं अपनी ज़ात के लिए, मैंने अभी बोला कि कोई भी चाहे क्रिश्चियन है या मसीह है वो कम नहीं करता। क्या हम इसी कीमती जगह पर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते? क्या हमारे इदारे इसी तरह हाथों से जाते रहेंगे? क्यों, ये क्या, ठीक है आपने बहुत अच्छा, लेकिन बजाते खुद एक मसीही हॉस्पिटल है। अगर इसको बहुत बड़ा नाम था, जो भी अमीर तरीन और एक्ट्रेस थे, बड़े बड़े गुलकार, वो सारे, मैं खुद वहाँ पर, मेरा बड़ा भाई काम करता था, बहुत लोगों से, मेहदी हसन से, मसूद राना से और कई लोगों से, उनसे अब बड़े भाई की वजह से मुलाकात, क्योंकि वो लोग वहाँ पर आते, हमने उनके घरों में भी गए उसकी वजह से, और वो बड़े भाई के घर में भी आते थे। वो चूँकि उस हॉस्पिटल में वो बहुत बड़ा जॉब था उसका, रिसेप्शन में, और सब लोग उसके पास आते थे इस वजह से वो उनसे मुलाकात रखते थे। दूसरी बात, मैं हैदराबाद में था और वहाँ पर मिशन रोड है, तो वो पूरा मिशन रोड है, वो पूरा उस वक्त का बिशप चंदू राय था मेरे ख्याल, उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और वहाँ चर्च ऑफ पाकिस्तान है, वो एक कोने में है बस, बाकी सारी प्रॉपर्टी उस वक्त के बिशप चंदू राय ने बेच दिया। तो अपनी ज़ात के लिए सब कुछ, आज भी वही कुछ हो रहा है अपनी पर। उसके बाद कितनी बार YMCA कराची को बेचने की कोशिश की, कितनी बार सेंट एंड्रयू जो कराची के दरमियान में चर्च है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको बेचने की कोशिश की। तो हम मसीह, इसी वजह से हमें बरकत नहीं मिलती कि हम खुदा के जो दी हुई नेमतें हैं हम अपनी बेच कर, तो क्या बनता है?
क्या बना? जितने झूठ और मुनाफिकत की दौलत इकट्ठी की, चाहे मसीही भी थे, उनको क्या मिल रहा है? लालच मिल रही। अगर उन्होंने कुछ बना भी लिया तो ऊपर जाके तो हिसाब देना, और इस बात को हम भूल जाते हैं। तो फिर हमने खुदा कैसे बरकत देगा? हमने जैसे कि, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, अगर हम खुदा के साथ देंगे आपको दराजी उम्र देगा, आपके बच्चों के बच्चे भी देखने की तौफीक देगा। और अगर हम जो प्रॉपर्टियां हैं, जायदादें हैं मसीहों के लिए, और वो भी आपने नहीं बनाई, उस वक़्त के जो पुराने मिशनरी थे, या पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ों का दौर था, उस वक़्त की बहुत प्रॉपर्टियां जो बनी, हम अब उनको, और कितने चर्चेस जो हैं जो लोकल पादरियों ने बेच दिए और बेच रहे हैं, और पैसा हासिल करके, और बनता कुछ भी नहीं, इसलिए कि वो खुदा की प्रॉपर्टी होती है। सर यूसुफ परवेज़ साहब की एक बहुत बड़े कथा है, झांसा। झांसा, और ये झांसा हमारे लिए बाएं हाथ के खेल है। झांसा देना झूठ से, मुनाफिकत की बातें, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है। वो लिखते हैं, आँख के ख्वाब टूट सकते हैं, आँख के ख्वाब टूट सकते हैं, लम्हे हाथों से छूट सकते हैं, लोग लोग अहले वफा को रास्ते में, लोग अहले वफा को रास्ते में झांसा देकर लूट भी सकते हैं। और जैसे मैंने कभी अहले वफा को, या एक दूसरे की भी वफा करते हैं, या मुल्क से वफा करते हैं, या अपने मजहब से वफा करते हैं, लेकिन आज का लोग झांसा देने में, एक दूसरे को धोखा देने में इतने कारीगर हैं कि वो किसी वक्त भी आपको तो अपनी हमदर्दी और वफा की बातें करते हैं, लेकिन वो किसी भी वक्त आपको लूट सकते हैं। और जैसे क्रिस्टी ने लिखा है कि लूट कसूर जो है वो शुरू है, और हम अपने ऐसा चंद बात जो प्रॉपर्टियां वही तो रह गई है, और वो भी पुराने ज़माने की बनी। आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ बड़े बड़े चर्च है वो अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए। आज जो चर्च बन रहे हैं छोटे छोटे एक दो कमरे के, और वो भी चंदों से, दय यक्कियों से लेकर, और वो भी प्रॉपर्टी चर्च की नहीं। वो जो भी पादरी है या बिशप है, वो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी है, और वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है, गाड़ी भी खरीद रहा है, प्रॉपर्टी भी बना रहा है, और जिनसे लिया जाता है। और रोमन कैथलिक की मुखालफत खूब की जाती, जो कि दुनिया का नंबर 1 जो है वेलफेयर अदारा है। और हम सब आज तक जो थे मसीही लोग, वो कैथलिक, रोमन कैथलिक की वजह से ही बहुत सारी तरक्की की। अब वो कम हो गया, हम सिर्फ मुखालफत की बातें करते हैं। टीना विलियम इटली से, उन्होंने लिखा, कानून सबके लिए बराबर। एक्चुअली ये पोस्ट है अफलातून की, कानून के हवाले से, कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और ये सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हमारे मुल्क में बोला जाता है। अदालती फैसले हमारे मुल्क में झूठे होते हैं। कल ही एक पोस्ट में पढ़ रहा था कि जो अमेरिका में फसादात चल रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर की तस्वीर डाल के किसी पाकिस्तानी में नीचे लिखा हुआ था कि मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपनी जो जमानत है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर करूँ, ताकि वहाँ पर हर मुजरम को, हर बुराई करने वाले को जमानत मिल जाती है, और मिलती है आपके सामने भी। और इसी वजह से दूसरे किसी और ने एक लिखा था कि हम चाइना से सब कुछ ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जज साहबान और वकला हजरात, जो वकील हजरात है, वो भी क्यों ना हम चाइना से ले लें, ताकि इंसाफ तो मिल सके। और पूरी पोस्ट तो ये है, कानून मकड़ी का वो जाला है, कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, मगर बड़े बड़े जानवर इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। ये पोस्ट एक्चुअली जो लिखा हुआ ये भारत अफलातून की, और आपके सामने है जो बड़े बड़े झूठे जागीरदार दौलतमंद, वो अदालतों को पैसा देके, रिश्वत देके, हालांकि अदालत का जज एक बहुत बड़ी, लेकिन हकीकत में जो जज है वो खुदा बाप और उसका बेटा है।
वो कभी किसी को झूठी जमानत नहीं देंगे। लेकिन जब फैसला ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे न कितने पैसे दे के कितने झूठे वकील करके हम उनसे छूट जाएंगे। और वाकई कानून तो हमारे मुल्क में भी कुछ नहीं है। और अक्सर एक बात डाली जाती कि सुल्तान रई जब था तो वो जेल को तोड़कर वो भागता है, जब दोबारा पकड़ा जाता तो वो कहता है जी अदालत जो है वो कानून जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए पूरा लफ्ज लेकिन आएगी तो फिर बोलूँगा। लेकिन मतलब यही था कि कानून जो है वो हमारे लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए। अभी जैसे नवाज शरीफ को बाहर भेजा तो छुट्टी वाले दिन भी संडे था शायद, अदालत लगा के और उसको बाहर जाने की उसकी जमानत मंजूर करके भेज दिया। तो ये से बड़ी और क्या बदबख्ती होगी हमारे मुल्क के लिए। उसके बाद सैमुअल कामरान कामी की मुल्तान से गजल है पंजाबी दी, अज नहीं ते कल होवेगी। क्या बात है, मुलाकात होवेगी या कोई अच्छी गल होवेगी, अज नहीं ते कल होवेगी, तेरी मेरी गल होवेगी। किसी ना किसी दिन ते साडी तुहाडी गल होनी है। लेकिन इस दुनिया ते गल नहीं होनी ते किसी ना किसी दिन ते जो मौत होनी है साडी खुदा बाप दे सामने गल ते होनी। फिर पता लगेगा कि सच्चियां गल्लां केड़ियां ने कि झूठियां गल्लां केड़ियां ने। झूठ किते किते मारे असां, हेरा फेरी झांसे असां किते किते देते ने। तो मुलाकात तो होनी होनी है क्योंकि मौत ते हकीकत है और आखिर इंसान ने मट्टी जाना ही जाना है। अज दियां गुंजड़ा अज खोल लो। बिल्कुल जेड़ी जिंदगी दियां गुंजड़ा ने जेड़ा जो कुछ अज असी उन्होंने संवार लिए, अज वक्त है दुनियावी तौर पर भी रूहानी तौर पर अज साढ़े को एक अच्छा वक्त है कि असी उन्होंने गुंजड़ा को खोल लिए। कल बड़ी मुश्किल होएगी और जदों वेला लंघ जाएगा भले उन्हें जिन्ना मर्जी कुटते रहो क्योंकि वेला जदों चला जाता गया वक्त फिर हाथ नहीं। तो जेड़ी गुंजल जेड़ी मुश्किल जेड़ियां एक दूसरे तो झांसे दे के झूठ दे नाल मुनाफकत दे नाल एक दूसरे तो दूरियां कर लईयां ने, उन्हां गुंजलां नूं उन्हां मुश्किलां नूं कढ लईए ते ओह सब तो बेहतर गल है। जिदी मुश्किल ओदे ना चावे, जिदी मुश्किल वो ना चावे, जिदी मुश्किल है वो कुछ भी ना चावे ते मुश्किल किवें हल होवेगी कि जिदे नाल मुश्किल है वो ही नहीं चाहता, वो ही नहीं खुदा को जानता, वो ही नहीं खुदा को तौबा करता, वो ही शैतान दी जान नहीं छड़दा। तो फिर वो मुश्किल किस तरह हल हो सकती। दुनियावी तौर पर भी मिला कि असी बहुत सारी आकड़ च अनाज झूठी इनाम मैं फसे हुए हैं। तो जो असी खुद ही इन्होंने गुंजलों के इन्होंने मुश्किलों चो खुद ही नहीं निकल सकते तो दूसरा की कर सकता वे। दूजे नू जेड़ा दुख दूजे नू दुख जरदा है, जेड़ा दूजे दा दूजे लई जेड़ा दुख जरदा है, दूजे लिए दूसरे लिए कोई दुख मुसीबत बर्दाश्त करता है ओदी ही बल्ले बल्ले होएगी और ओदी ही बल्ले बल्ले। लेकिन इंसान ते दुख दे सकता किसी लिए जर नहीं सकता क्योंकि दुख देंदा दूसरे दुख जरते हैं। लेकिन अगर दुनिया ते कोई वाह देखी शख्स आया थी अज दे दौर च तो बिल्कुल मेरे ख्याल उस शख्स नू खुदा दे बेटे नू खुदा यसू मसीह नू एक बारी फिर होना चाहिए ताकि वह दुख जग गया सी, वो इंसानियत वास्ते मर गया सी ते सानू छड़ा गया सी। अदरवाइज अज कोई किसी का दुख नहीं जर सकता, बर्दाश्त नहीं कर। और अज असी ओदी बल्ले बल्ले ते करने कि उन्हें साढ़े लिए वाकई दुख जरिया सी लेकिन सच्चे दिल नाल नहीं, सिर्फ मुँह जबानी करने। अगर असी सच्चे दिल नाल ही ओदी बल्ले बल्ले करिए तो मनीए तो फिर बहुत सारिया मुसीबतां तो असी बच सकने हैं। अपनी तोड़ निभेगी, अपनी तोड़ निभेगी तद ही, अपनी तोड़ निभेगी तद ही जे थोड़ी वल टल
ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਅਟਕਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾਈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੀ बहन टीना विलियम इटली तो, शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी। हम बातें तो सुनते हैं, बाइबल से पढ़ते भी है, हमें बहुत सारे खादमीन बिशप साहबान ये तालीम देते हैं कि बदकारी शरीर की उसकी शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी और वो अपने गुनाहों की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। इमसाल 5 बाप उसकी 22 साल। और ये सब कुछ सुनते हुए पढ़ते हुए भी हम क्यों उसकी जो शरीर की हम बदकारी में क्यों जकड़ते जा रहे हैं, हम क्यों शैतान के हवाले से जकड़े जा रहे हैं। और आखिरी पोस्ट है का आसफ रजा खोकरगी, कोरोना ने इंसानियत जिंदा कर दी है। टेस्ट कोरोना का करवाना है तो दुआ सारे मोहल्ले में करता है, लेकिन वो सिर्फ कोरोना का डर है, खुदा का डर नहीं। अगर खुदा का डर हो तो ज़रूर जो है वो कोरोना ख़त्म हो सकता है। ये तो सिर्फ हम अपने अपने डर के लिए दुआ करते हैं कि खुदा ना करे वो मरीज़ मेरे घर में आ जाए या मैं उसके पास से गुरु। तो ये तो डर है, कोरोना का डर है, यस्सु का खुदा का डर नहीं। और जो आज का टॉपिक था, आज मैंने शुरू में कहा कि आज मेरे पोते की सालगिरह इलाजा जान गिल की, तो ज़बूर 128 पढ़ा और उसमें जो टॉपिक था बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। और आखिर में ये हवाला पढ़ूंगा, ज़बूर 128 तो उसकी 6 आयत हैं। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई कहेगा कि यही सत्य, अगर हम अपने हाथों की कमाई खाएंगे, सच्ची अच्छी नेक कमाई खाएंगे तो खुदा बरकत देगा हमें। तू मुबारक और सादतमंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताकत की ताक की मानद होगी, क्योंकि अगर अच्छी बीवी है तो वो मेवादार ताक के मानद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरन पर जैतून के पौधों की मानद होगी। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। ये बरकत उसको मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सहून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। आमीन। और यही आज का मेरा टॉपिक है और यही मैंने शुरू में बोला कि आज मुझे ये सादत हासिल है कि मैं आज अपने बच्चे की सालगिरह मना रहा हूँ आज वो। और एक उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि वो किंडरगार्टन से या जिसको केजी नर्सरी कहते हैं वो उसको पास करके क्लास 1 में चला गया है। और अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं तो कहाँ से चले थे कहाँ, और आज मेरे बच्चे और मेरे पोते भी आगे खुदा के वसल से अमेरिका जैसे मुल्क में तालीम। तो ये क्या है, उसकी बरकत है, क्योंकि तू मुबारक और सादतमंद होगा
اور مبارک ہر ایک جو خداوند سے ڈرتے ہے، اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو خدا ایسی برکتیں اس کو دیتا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کے بچے بھی دکھاتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت دے، اور ایسی برکت دے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو بچے دیکھیں، لیکن اس کے لیے زندگی میں دگو دو کریں، بچوں کو تعلیم و تربیت دیں تاکہ قوم بھی اچھی بنے، خاندان بھی اچھے بنے۔ خدا آپ سب کو اس کرونا وائرس سے بچا کر رکھے، یہ مانگتا ہوں پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین۔